हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो है अध्याय 3, जिसमें हम आज मॉडर्न वर्ल्ड 1 करेंगे यानी जो है आधुनिक विश्व 1 करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में मॉडर्न वर्ल्ड है तो ये सिलेबस जो है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is important here, development of science. Here, development of science during the Renaissance, extraordinary is a accomplishment where is made in their field of science. We have already read that is a Renaissance thinkers emphasis more on reason than on the blind faith of the stress that is knowledge could be gained by their observation and experimentation. There is important here. There are experimentations and there is a rejected of blind faith in traditions and established of beliefs. And this result in a scientific inquiry that has almost disappeared. The reasoners also both about the scientific evolution. The art is like a Leonardo da Vinc's made by observational and drawing of the anatomy and nature, which were a unique blend of science and art. Their period also saw the remarkable achievement in a medicine and human anatomy. There is a most important remarkable here of medicine and human anatomy. The Michaels is a Soviet and the Spanish doctor discovered the circulation of blood. The William Havels on the Englishman explained there is a function of the heart in a purifying of blood and it is circulant through the vein. The beginning that were made by the Renaissance scientists paved way for the observation and experimentations in order of field of knowledge. One of the most remarkable achievements of the Renaissance in the science was it is the field of astronomy. There is important. Have you heard of the Copernicus, is a Kepler and Galileo? And there is a great is the astronomers who is formulated and tried to be prove that the earth is revolves is around the sun. Before the Renaissance, it was a belief that the sun revolved around there is a earth and is however is a question if this is demonized as a heretic. And the company cause is there is a book on the revolution of Hevelian sphere and agree that is the earth and there are planets move around the sun and concentrics is a circles. The concentrics is a circle, even though their theory was the imperfect, it's aroused is the thinking and the reasoning. And Kepler is the further development these theories and said that the other planet move in the is elliptical at the path around their sun. He also argued the magnetic attraction between the sun and the planet is a keep to Hevelian bodies on the orbital motion. Further on is as association Iceland neutron developed a law of universal gravitation. The neutron is developed the law of universal gravitation in this period time with the self of manufacture of telescope also. And Galileo discovered is the moons of Jupiter, the ring of Saturn, and the spot of the sun.
He also confined to the finding of Copernicus is resonance also developed a sagacity in their mind of Europeans about the other is a land and other peoples. Let's find out how this happened. देखा जाए तो इस समय काल में विज्ञान ने भी बहुत ही प्रगतिशील रही और विज्ञान ने हर क्षेत्र में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखा जाए तो यहाँ पर पुनर्जागरण के दौरान जो है विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि की गई थी। कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हासिल की गई थी विज्ञान के विकास में। और हमने पहले से ही पढ़ा है कि पुण्य जागरण के विचारकों ने अंधविश्वास के कारण पर जो अधिक जोर दिया, क्योंकि जो विचारकों का मानना था कि अंधविश्वास जो है सही नहीं है और समझा कि ज्ञान अवलोकन का प्रयोग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। देखिए कहते हैं अगर आपको अंधविश्वास को ख़त्म करना है तो साइंस को सामने लेके आना पड़ेगा और यही इस समय के थिंकनर्स ने किया। जो विचारक थे उन्होंने ये बात साबित करके दिखाया। कहते हैं पहले के समय जब सूरज ग्रहण लगती थी तो लोग जो है एक दुर्घटना समझते थे, एक बहुत ही जो है अलग दृश्य से उसको देखते थे। लेकिन जब इसके बारे में पता लगा तो उनको समझ में आई कि ऐसा कोई दानव उसको नहीं खाता, ये सिर्फ एक खगोलीय दुर्घटना है, खगोलीय जो है एक प्रक्रिया है और ये बात वो भली भांति समझ सके। तो इसके लिए जो है एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है और ये ज़रूरी भी है। उन्होंने परंपराओं और मान्यताओं तथा अंधविश्वासों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके समक्ष जो था विज्ञान ने उनकी आंखों पर जो अंधविश्वास का पर्दा पड़ा हुआ था उसको साफ कर दिया और इससे वैज्ञानिक जांच की शुरुआत हुई जिसे लोग भुला चुके थे। पुण्य जागरण से विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई, क्योंकि पुण्य जागरण एक ऐसा समय काल था जहां पर अगर हम आर्ट्स की बात करें तो उसकी तो पुण्य जागरण हुई प्लस जो है विज्ञान का भी यहाँ पर क्रांति आ गई, जिससे विज्ञान ने हर क्षेत्र में जो है अपना बहुमूल्य योगदान देना शुरू कर दिया। कहते हैं लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकार ने शरीर संरचना विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान और कला के एक अनूठा मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया। तो कहते हैं इसमें जो लियोनार्डो दा विंची का जो है इतना महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने शरीर रचना विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान और कला के जो है अनूठा मिश्रण को जो है पूरे जनमानस तक जो है प्रस्तुत किया। माइकल सर्वाटस एक स्पेनिश चिकित्सक के रक्त के परिसंचलन की खोज की। अब देखिए यहाँ पर रक्त की खोज भी इसी समय के दौरान हुआ। इवन कि विलियम्स हार्वे एक अंग्रेजों ने हृदय द्वारा रक्त के शुद्ध करने और नसों के माध्यम से इसके परिसंचलन को भी समझाया कि हमारे शरीर में जो है हृदय द्वारा रक्त को जो है विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, ठीक है, नसों के द्वारा। तो इस बात को जो है विलियम्स हार्वे ने बहुत ही साधारण रूप से लोगों को जो है जनमानस को समझाया। तो ये समय काल एक ऐसा था जहाँ पर इसमें विकास और पुण्य जागरण की बातें बखूबी देखने को मिलता है। ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी शुरुआत हुई और पुण्य जागरण ने वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयास और अवलोकन और प्रयोग के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया, यानी वो सारे रास्ते खोल दिए जो अंधविश्वास के दरवाजे को जो है बंद किया जा सकता था। और ये महत्वपूर्ण समय काल था। कहते हैं विज्ञान में पुण्य जागरण की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां जो है खगोलीय विज्ञान क्षेत्र में हुई। खगोलीय विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये पुण्य जागरण के समय काल में ही हुई। क्या आपने जो है कोpernicus, केप्लर और गैलीलियो के बारे में सुना है और जाना है कि वो कौन थे? अगर आपको ये बात पता होगा तो वो एक महान खगोलीय शास्त्र थे। कहते हैं खगोलीय शास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उन्होंने सिद्ध भी किया था कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और इन्होंने बखूबी इस बात को जो है समझाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी पुण्य जागरण काल के समय। कहते हैं पुण्य जागरण से पहले यह माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी पृथ्वी है और उसके चारों ओर सूर्य घूमती थी। ये पहले के समय में मान्यता थी, लेकिन जब इन खगोलीय शास्त्री ने इस बात को समझाया लोगों को तो ये प्रूफ करके भी दिखाया। इससे क्या हुआ कि ये जो है पूरा ही एक नई क्रांति ला दिया। खगोलीय विज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति का है जो संचालक हो गया। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि सूर्य ग्रहों के बीच एक जो है कक्षीय गति में चुंबकीय आकर्षण होता है
और आज देखिए चुंबकीय आकर्षण के अंतर्गत कितने चीज़ों का आविष्कार हो चुका है। तो ये साइंटिस्टों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जो है जनमानस के समक्ष रखा। अगर हम बात करें आइजैक न्यूटन की, तो न्यूटन से तो आप भली भांति परिचित ही होगी। इन्होंने जो है सबसे महत्वपूर्ण बात सार्वभौमिक गुरुत्व के सिद्धांत दिया, यानी जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जिन्होंने सिद्धांत दिया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसलिए न्यूटन की जो है योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। और ये किस समय काल में हुई? पुण्य जागरण काल के समय हुआ। अपने द्वारा बनाई गई दूरबीन और गोगलियों से जो है बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज भी किया इन्होंने, और शनि के छल्ले और सूर्य को भी देखा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दृश्य था उस समय। उसने कोपर्निकस की खोज की पुष्टि भी की और पुण्य जागरण के अन्य क्षेत्रों और अन्य लोगों के बारे में गोरे के मन में एक जिज्ञासा का विकास भी किया। कहते हैं अब हम पता करेंगे कि ये सब हुआ कैसे। तो चलिए देखते हैं नई भूमियों की खोज किस प्रकार हुई, उस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करें। द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स। देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड है। The spirit of inquiry encourages many of adventure to be discover new land. You know that the spirit of inquiry encourages many of adventure to discover new land. The new trade or route that is where discovered changed the history of the world. It said that is a God, glory and gold. There is an important word here. God, glory and gold was the main motive behind this discovery. But a motive of gold or economical need was the most important on this period of time. But before there is a geographical discoveries, is the Europeans obtained an article like a spicy, cotton, precoce, germs, silk, etc. There is a most important article on this period of time of is obtained here, and from the eastern part of the world, they travel through the Arabic and Islamic territories for a simply of these articles. And this was not every convenient and also posed uncontinuity. So a direct sea or route of Southeast Asia was discovered as it had a potential of lucrative trade. The explorers also is another motive which was to be convert the people of newly found area of Christianity. It also become a mean from them to serve a God. In addition, the adventure also is a hope to be acquired fame by the discovering new land. Some did or needed become a very famous. Have you heard about Vasco da Gama discovering an Indian and Columbus, who set out of India but discovered America? Do you know? There's a Ferdinand Magellan was the first explorer to be lead on the expeditions around the world. Arthur Williams was another famous explorer. There's important here. And why do you think that this is a great adventures and the vessels are the explored by king and the wealthy people? The trend is increasing in the trade and colonizations had to be great impact on the enhancement of European wealth. One of the most famous king who is responded there is the Wales was the Portuguese as a king Henry, and who also known as the Henry the Navigator. The technologically base of these discoveries has come from the invention of compass and Stowell is the astrochemical travel and the art of map making also. There is a most important is a founding in this period of time. This voyage is a lead to the establishment of trading outpost and colonial empire in a different part of Africa, America and Asia. Now, the commercially focus shifted from the Mediterranean Sea of the Antarctica Ocean. Many new commodities were added to be traded, such as tobacco, molasses, and ostrich feather, and potato also.
It is also studied the inhumans slave trade in America, and slave were captured from Africa and transferred across the Antarctica oceans and sold to work in a plantation in Northern America. And this trade are practiced as a new sea routes are helping to the European merchant to be accommodate hugs of wealth which they invested in their development of new machines. There is a development here, a new machine on this period time, and this led to coming of the industrial revolution which made them more powerful and wealthy. That is also important. देखिए यहाँ पर जो बात आई है नई भूमि की खोज, कहते हैं जागरण पुण्य जागरण काल के समय बहुत चीज़ों की जो है खोज हुई, और इसमें से नई भूमि की खोज ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि इससे व्यापार के जो है मार्ग प्रशस्त हुआ। तो नई भूमि की खोज से जो है पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके विषय में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। यदि बात करें नई भूमि की खोज, तो कहते हैं जांच की जो भावना ने कई सहायक लोगों के लिए नई भूमि की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया, और नए व्यापार मार्ग की खोज ने दुनिया के इतिहास को ही बदल दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि जैसे जैसे खोज हुई, भूमि की खोज हुई, पूरे विश्व का इतिहास बदल गया। और यह कहा जाता है कि भगवान, प्रतिष्ठा और सोना इन खोजों का मुख्य उद्देश्य था। लोग या तो भगवान की खोज में लगे रहते थे, या अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे, या सोने की खोज में लगे हुए थे। उस समय इन्हीं तीनों चीज़ों की दौड़ लगी हुई थी और इनका उद्देश्य यही था। लेकिन सोना या आर्थिक ज़रूरत का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी, भगवान, प्रतिष्ठा और सोना। लेकिन इस पर महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी वो सोना थी। और सोना आपको पता ही है कि आर्थिक ज़रूरतों के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हमने एक चैप्टर भी पढ़ा था, ठीक है, गोल्ड क्राइस्ट। तो गोल्ड क्राइस्ट में ऐसा ही देखने को मिला कि अमेरिका में बहुत से लोगों को भेजा गया इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है ये जो है अफवाह फैला दी कि वहाँ पर सोने की खाने हैं, और इसे गोल्ड क्रैश के नाम से जाना गया। और ये जो बच्चे कहते हैं पढ़ेंगे इसके बारे में, हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। देखा जाए तो भौगोलिक खोजों से पहले यूरोपीय दुनिया सबसे जो है मसाले, कपास, जवाहरात, रेशम आदि वस्तुएं मंगवाया किया करते थे, जिसकी आपूर्ति के लिए उन्हें अरबी और इस्लामी प्रदेशों के बीच यात्रा करनी पड़ती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी भौगोलिक खोजों से पहले यूरोपीय दुनिया सबसे जो है मसाले, कपास, जवाहरात, रेशम आदि की वस्तुएं मंगवाया किया करते थे, और जिसकी आपूर्ति के लिए उन्हें अरबी और इस्लामी प्रदेशों के बीच यात्रा करना पड़ता था। लेकिन यह सुविधाजनक नहीं था, कई बार तो उनको मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता था, और यह अनिश्चितताओं से भरा था। कई बार तो अनिश्चितताएं लगी रहती थी। लेकिन देखा जाए तो पूर्व एशिया के लिए एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज हुई, और इसमें व्यापार की क्षमता भी थी, तो ये काफ़ी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। खोजकर्ताओं का एक और मकसद था, जो था नए क्षेत्रों के लोगों से ईसाई धर्म में परिवर्तन करना, या उनके लिए भगवान की सेवा का एक मौका बन गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि खोजकर्ताओं का एक और मकसद था कि वो जो था ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का विचार लेके पूरे विश्व में जो है वो भ्रमण करना चाहते थे और ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे। इसके अलावा साहसी लोगों ने नई भूमि की खोज के द्वारा प्रसिद्धि मिली, क्योंकि आपको पता है वास्को डी गामा जो कि पहले वेस्ट इंडीज़ की खोज करने जा रहा था, लेकिन वो इंडिया में पहुंच गया और जाके इंडिया की खोज उसने कर पाया। कुछ तो वास्तव में बहुत प्रसिद्ध भी हो गए। आपको वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज जो है, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बारे में सुना ही है, और हमने इस पर चर्चा भी की है। वास्को डी गामा जो भारत की खोज किया और कोलंबस जो अमेरिका की खोज किया, ये कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने किया, तो कोलंबस ने किया था, और भारत की खोज किसने किया, वास्को डी गामा ने। क्या आप जानते हैं कि फर्डिनांड मैगेलन पहला अन्वेषक था जिसने दुनिया के चारों ओर चक्कर लगाने के अभियान का नेतृत्व किया, और वेलोसिम्बल डिगास एक प्रसिद्ध अन्वेषक था। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पूरे दुनिया का चक्कर लगाना, और ये किसके नाम से गया हुआ है, फर्डिनांड मैगेलन का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है।
तुम्हें क्यों लगता है कि महान रोमांची यात्री राजा और अमीर लोगों द्वारा प्रायोजित की गई थी? ये कैसे लग सकता है? ये आप लोगों को लग रहा होगा ना कि महान रोमांचिक यात्रा राजा और अमीर लोगों द्वारा ही आयोजित की जाती थी। व्यापार और उपनिवेशीकरण में जबरदस्त वृद्धि से यूरोपीय धन वृद्धि पर एक महान प्रभाव पड़ा। और कहते हैं एक सबसे प्रसिद्ध राजा जो यात्रा को जो प्रायोजित करता था पुर्तगाली ही था। पुर्तगाली ऐसे थे जो कि सभी यात्राओं को जो है प्रायोजित किया करते थे। वह था राजा हेनरी। राजा हेनरी जो हेनरी नेविगेटर के रूप में भी जाना गया था और इस खोज के लिए तकनीकी आधार कंपास और वैध यांत्रिक खगोलीय सारणी और नक्शे बनाने की कला को आविष्कार से हुआ। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। हेनरी जो कि हेनरी नेविगेटर के रूप में भी जाना जाता है, उसने जो है कंपास वैध यांत्रिक खगोलीय सारणी और नक्शे भी बनवाने का जो है आविष्कार इस समय हुआ। और इन यात्राओं से विश्व के विभिन्न भागों में जैसे अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में व्यापारी जो है चौकी बनाने और औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना के मार्ग को परस्त कर दिया। तो कहते हैं कोई चीज़ की जब खोज होती है तो उसके मुनाफे हर एक लोगों को मिलती है, और ये भी यहाँ पर हुआ। कहते हैं नए नक्शे का आविष्कार होना, और कहते हैं इन यात्राओं से विश्व के विभिन्न भागों में जैसे अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में व्यापारी चौकी बनाना और उपनिवेश साम्राज्य की स्थापना के मार्ग को जो है साफ कर दिया। यहाँ पर आप जो है वास्को डी गामा का जो है तस्वीर भी आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वास्को डी गामा जो भारत की खोज करने वाले व्यक्ति थे, उसके जो है आपके समझ तस्वीर भी नज़र आ रहा होगा। और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपने जीवन में योगदान दिया भारत की खोज करके, और भारत जो है पूरे विश्व के साथ जो है समझ सका और जान सका और ज्ञानों का जो है प्रसार भी हो सका। तो ये सब वास्को डी गामा का ही कोशिशों का नतीजा था। अब देखा जाए तो वर्जिल की रुचि जो है अंटार्कटिका महासागर से भूमध्य सागर से स्थानांतरित हो गई, और कई नई वस्तु जैसे तमाकुल, गुड़, शुतुरमुर्ग पंख, आलू आदि जो है व्यापार में शामिल भी की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इससे जो है मानवीय दास जो व्यापार की शुरुआत भी हुई। कहते हैं कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा भी हुआ। जहां हम पूरे विश्व में जो है हर चीज़ों का आदान प्रदान करने लगे, वहां से ही जो है मानवीय दास प्रथाएं शुरू भी हो गई, और गुलाम अफ्रीका से पकड़कर अंटार्कटिका महासागर के पार और उत्तरी अमेरिका में वृक्ष रोपण में काम के लिए बेचे जाते थे। तो ये उस समय के लिए सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था थी, जहां पर अमेरिका में वृक्ष रोपण के लिए गुलामों को जो है खरीदा जाता था। और इस व्यापार पद्धति और नई समुद्री मार्गों ने विशाल मात्रा में जो है धन इकट्ठा करने का भी एक मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि व्यापारी लोग जो है धन इसमें जो इकट्ठा करने लगे, और नई मशीनों के विकास ने निवेश के लिए भी काफ़ी मदद किया। और यह औद्योगिक क्रांति ही थी जिसने उन्हें और अधिक शक्तिशाली और जो है अमीर बना दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर
पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।